اب تو 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ سومئی نے کہا تھا ابھی میری ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ یہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جن کے نخرے یہ ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جن کی مار یہ ہے العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں حضور غوث اعظم کی زندگی کو۔ آج حضور غوث اعظم کے تذکرے دنیا کے ہر کونے پہ ہیں، آج حضور غوث اعظم کے ماننے والے دنیا کے ہر کونے پر ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں او میرے عزیزوں، آخر یہ اتنی شان والے بیٹے کب پیدا ہوتے ہیں، یہ اتنے مرتبے والے بیٹے کب پیدا ہوتے ہیں؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ اتنی شان والے بیٹے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب باپ نمازوں کا پابند ہو، یہ اتنی شان والے بیٹے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ماں زہد و تقوی کا پیکر ہو، ماں نے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھال کر کے رکھا ہو، یہ بیٹے اس وقت اتنی شان والے پیدا ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اگر آج انسان سدھر جائے تو گھروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان سدھر جائے، اگر انسان اپنے کرتوتوں کو صحیح کر لے تو یاد رکھو میرے عزیزوں، اگر انسان نمازوں کا پابند ہو جائے، اگر انسان اپنی زندگی کو زہد و تقوی میں گزارنے لگ جائے تو صلاح الدین ایوبی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بخود صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے گا، خود بخود صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے گا۔ لیکن آج ہمارے کرتوت نہیں ایسے، آج ہمارے طور طریقے ایسے نہیں ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو جو طریقہ نبی کریم نے بتایا تھا اس کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں میرے عزیزو، اگر انسان یہ عہد کر لے کہ میں نماز کا پابند ہوں، میری بیوی بھی نماز کی پابند ہو، جب بیٹا شکم کے اندر ہو تو اپنی بیوی کو یہ تاکید کرے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح ہو تحلیل پڑھے، تو یاد رکھو جو شکم کے اندر بیٹا ہوگا جب وہ دنیا کے اندر آئے گا تو وہ نافرمان نہیں ہوگا بلکہ غلام عبد القادر چمکے گا، غلام عبد القادر دنیا کے اندر بنے گا۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کریں حضور غوث اعظم کے والد کی زندگی کو، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی زندگی کو۔ نوجوان ہیں، نوجوانی کا عالم ہے، خوبصورت ہیں، حسن و جمال کا مجسمہ ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی پر غور کریں، آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ نوجوان ہے لیکن کام کیا کرتا ہے؟ یہ نوجوان دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں پوری پوری رات قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کریں ابو صالح کی زندگی کو، یہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، جب شام کا سورج غروب ہو گیا، بھوک شدت کی لگی تھی، دریائے دجلہ کے کنارے چل رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا دریا میں آ رہا ہے،
बहता हुआ सेब आ रहा है, आपने उस सेब को उठाया, उठाने के बाद उसको नोश फरमा लिया। जब उस सेब को खाया तो जमीर ने झंझोड़ झंझोड़ करके कहा, ऐ अबू सालेह, तूने बड़ा गुनाह कर दिया है, ये मालिक की इजाजत के बगैर सेब खा लिया है। अगर इसका हिसाब बारगाहे इलाही में हमसे लिया गया तो हम कैसे इसका हिसाब दे पाएंगे, कैसे रब के सामने इसका हिसाब देंगे। यही अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं। जमीर झंझोड़ झंझोड़ करके कह रहा है कि चलो अब माफी की तलब में निकले हैं, कि जिस बाग के मालिक का ये सेब होगा उससे चल करके हम माफी मांग लेंगे, उससे हम माफी तलब कर लेंगे, वो हमें माफ कर देगा। मेरे अजीजों, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, किसी की जमीन को नहीं जोता था, किसी के ऊपर नाहक कब्जा करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया था, किसी के ऊपर दबाव डाल करके उसकी जेब से पैसे नहीं निकाले थे, बल्कि क्या था, सिर्फ एक सेब खाया था। आज इंसान दूसरे की जमीनों पर नाहक कब्जा करने पे लगा है, आज दूसरे की जमीनों को जोतने पे लगा है, आज दूसरे की मेल पलटने पे लगा है। इंसान कहने को तो मुसलमान है, लेकिन करतूत इतने गंदे हैं कि वो अपने सगे भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसका भी गला दबा करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। आज ये कौम की कड़वी सच्चाई है। ऐ मेरे अजीजों, तुझे दर्स मुस्तफा जान रहमत ने ये दर्स तो नहीं दिया था, तुझे आमना के लाल ने ये दर्स तो नहीं दिया था, जो तू जिंदगी गुजारने लगा है ये तरीका तो आमना के लाल ने नहीं दिया था। अरे मेरा नबी तो हमारे पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने तक की इस्लाह कर गया। मुस्तफा ने तो फरमाया कि अगर किसी की जमीन पर नाहक कब्जा करोगे तो सुनो, मन ज़लमा मिनल अर्द शय्यन तुवक़्क़िउहु मिन सबई अर्दीन, अगर किसी की तुमने एक जर्रा बराबर जमीन पर भी नाहक कब्जा ले कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गले में जहन्नम की आग का साथ जमीनों के बराबर तोक पहनाएगा। आज गरीबों का माल लूटने पे हम लगे हैं, यतीमों को झंझोड़ने पे हम लगे हैं, बेवाओं को उनका हक लेने पे हम लगे हैं। फिर पूछते हो कि कयामत कब आएगी, फिर पूछते हो कि हमें सुकून नहीं मिल रहा है। पैसा भी इंसान के पास होने के बावजूद उसका दिल मुतमईन नहीं है। जरा देखो उस गरीब को जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, अगर उससे पूछोगे बता अंदरूनी हालत में तेरा क्या हाल है, तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। लेकिन अगर किसी दौलतमंद से पूछो, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास प्रॉपर्टी भी है, अगर उससे पूछो बता अंदरूनी हालत में तेरा दिल मुतमईन है, तेरे दिल को सुकून है या नहीं है, तो वो यही कहेगा कि हमारे दिल को सुकून नहीं है। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास बैंक बैलेंस भी है, लेकिन हमें सुकून नहीं मिल रहा है, हमें सुकून मयसर नहीं है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। लेकिन उसी गरीब से पूछो जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम का खाना खाने के बाद वो लेट करके सो जाता है और सुबह उसकी आंखें खुलती हैं, फिर वो अपनी अपनी रोजी तलाश करने के लिए निकल जाता है। तो मेरे अजीजों, कहना यह चाहता हूं, अगर दिल को सुकून देना चाहते हो, अगर अपने आप को अमन और सुकून में रखना चाहते हो, तो सुनो, किसी की जमीनों पर नाहक कब्जा न करना, किसी को सता करके उसकी प्रॉपर्टी पर नाहक कब्जा न करना, किसी का गला दबा करके उसकी जमीन पर अल्लाह अकबर कब्जा न करना। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अगर आपको
कोतवाली के अंदर देखे तो आपको मालूम चलेगा कि एक भाई आया जिसके सर पे अल्लाह अकबर चोट लगी है, जिसका सर फटा हुआ है। अगर उससे पूछो बता तेरे सर पे क्या हो गया है, तो वो यही कहेगा कि जमीन का झगड़ा था, भाई ने सर पे लाठी मारी, अल्लाह अकबर, खून बहने लगा। ऐ मेरे अजीजों बता तो सही, मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या तुझे यही बताया था भाई का वकार? क्या तुझे आकाए करीम ने यही भाई का वकार बताया था? ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, जब आका हसन मैदान आका हुसैन मैदान करबला में गए, जब अब्बास अलमबरदार की शहादत हुई है, तो इमाम हुसैन ने अल्लाह अकबर कमर पकड़ करके कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ऐ मेरे अजीजों, इन जमीनों के झगड़े में आकर के, जमीनों के चक्कर में आकर के भाइयों का खून न बहाना, अल्लाह अकबर, भाइयों पे नाहक अल्लाह अकबर जुल्म सितम न करना। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने एक सेब खाया था, उस सेब की कीमत चुकाने के लिए आप दरियाए दजला के किनारे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, चलते चलते एक दरिया के किनारे बाग पड़ा, आप समझ गए इसी बाग से वो सेब गिरा था। अल्लाह अकबर, जाने के बाद पूछा था आप इस बाग के मालिक हैं? अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई ने कहा था हाँ हाँ ये हमारा ही बाग है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चले, जब अब्दुल्ला सुमई ने इतनी बात कही, अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा था कि मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, आप खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। अब्दुल्ला सुमई समझ गए हैं ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि ये नौजवान वो है जिसकी जिंदगी ज़ोहद तकवा में गुजरी है। ये नौजवान वो है जो शरीयत मुतहरा पर अमल भी करता है। ये नौजवान वो है जो अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के बताए हुए फरमान पर गुजारता है। ओ मेरे अजीजों जरा गौर करो, हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था ऐ नौजवान सुन ले, मैं सेब की कीमत ऐसे नहीं माफ करूंगा, बल्कि तुझे 1 साल तक हमारे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। अगर आज इंसान किसी की जमीनों पर, अगर आज इंसान किसी की चीज को उठा करके खा ले, अगर वो अल्लाह अकबर उसका दिल गवाही भी दे दे माफी मांगने के लिए, अगर मालिक कहते कि तुझे 1 साल तक हमारा काम करना पड़ेगा, तो आज इंसान कहेगा एक तो माफी मांगने के लिए आए हैं, दूसरे तू 1 साल के लिए अल्लाह अकबर हमें सजा दे रहा है। मेरे अजीजों, ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। अल्लाह अकबर, अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा था ठीक है मैं 1 साल तक बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हूँ। एक मुद्दत तक बाग की रखवाली की, फिर कहा था ऐ बाग के मालिक अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। अब तो 1 साल का अरसा गुजर गया है। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला सुमई ने कहा था अभी मेरी एक शर्त और है, वो शर्त ये है कि तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अबू साले कहते हैं कि ये काम तो घर के बड़े किया करते हैं, ये बच्चे नहीं किया करते हैं, मगर मैंने सेब खाया है, उस सेब की माफी के लिए मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चले, हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कहा अल्लाह अकबर, मेरी बेटी के अंदर खामियां हैं, मेरी बेटी नजरों से अंधी है, मेरी बेटी हाथ पैर से अफाहिज है, मेरी बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी अल्लाह अकबर जुबान से गूंगी है। कहा ठीक है मैं माँ, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला सुमई ने अपनी बेटी फातिमा उम्मुल खैर से निकाह करा दिया। जब हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त अपनी बीवी के पास गए हैं, जैसे ही गए जाने के बाद जो अब्दुल्ला सुमई ने कहा था कि वो नजरों से अंधी है, अल्लाह अकबर, सब काम उसके बरअक्स नजर आ रहा है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त दरवाजे से भागे और कहा था ऐ बाग के मालिक सुनो सुनो, आपने जो अपनी बेटी की शर्तें बताई थी अल्लाह अकबर वो तो उसके खिलाफ है। आपकी बेटी तो नजरों से देख भी रही है, उसके हाथ पैर भी सलामत हैं, उसकी जुबान भी सलामत है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था ऐ बेटे अबू साले सुनो सुनो, मेरी बेटी अल्लाह अकबर नजरों से इसलिए अंधी है क्योंकि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी पैरों से अपाहिज इसलिए कहा था क्योंकि मेरी बेटी अल्लाह अकबर अपने कदम को किसी गलत काम के लिए नहीं बढ़ाया है। मैंने अपनी बेटी को
زبان سے گونگی اس لیے کہا کوئی غلط الفاظ اس نے زبان سے نہ نکالے. کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ کانوں سے اس نے کسی غلط چیز کو نہ سنا. او میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلیں. جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فاطمہ ام الخیر کی شادی ہوئی, انہی کے باغ کا جب ایک پھول کھلا, اسی پھول کو دنیا عبد القادر جیلانی البغدادی کے نام سے جاننے لگی. جب اسی پر نظر میرے امام کی پڑی تو میرا امام کہنے پر مجبور ہو گیا, واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا.